Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a last part of the chapter of process to compel appearance of person, which is a part and parcel of BNSS 2023. In the previous lectures, we have discussed that if the magistrate wants to call any person before the court of law, magistrate used to issue a summons. If the summons is duly served and the person fails to remain present before the court of law, then the second mode will be used, that is a warrant. Court will issue a warrant. If the warrant is not executed as the accused is concealing himself or is absconding, then under such a circumstances, court published a proclamation, and if whatever the time given in the proclamation, in that time, if that accused fails to remain present before the court of law, then court is having a power to apply a fourth mode, that is attachment of property. Court will attach a movable and immovable property of that person. So that process we will discuss in today's lecture. तो हमने देखा कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट किसी पर्सन को कोर्ट में बुलाना चाहता है तो सम्मन्स भेजेगा सबसे पहले, सम्मन्स पे नहीं आया तो वारंट भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो प्रोक्लेमेशन, अगर प्रोक्लेमेशन के टाइम में भी प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी. किस तरीके का अटैचमेंट होगा आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 85 टू 89. तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा. तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. देखिए सेक्शन 85 डील्स विद अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग. जो पर्सन एब्सकॉन्डिंग है, भगोड़ा है, भागा हुआ है, अरेस्ट नहीं हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे. आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, इफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर फेल्स टू अपीयर, if a court has reason to believe that such person is about to dispose of the whole or any part of his property, he is about to remove the whole or any part of the property from the local jurisdiction, it may order attachment of property simultaneously with the issue of proclamation. देखिए, whatever the time given in the proclamation, if the person fails to remain present before the court of law, in that time, court is having a power to attach the property. But while publishing a proclamation, if the court is having reason to believe that the person against whom the proclamation will be issued will try to dispose his property or is about to remove that property from the local jurisdiction of that particular court. So along with the proclamation, the court may pass the order of attachment. Along with the proclamation, court simultaneously pass the order of attachment. बात ध्यान में रखिए कि 30 दिन का टाइम था प्रोक्लेमेशन में, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं रहा तो उसके बाद अटैचमेंट करेंगे. लेकिन जब प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर रहा है मैजिस्ट्रेट, प्रोक्लेमेशन पब्लिश करते हुए अगर मैजिस्ट्रेट को यह लगता है कि ये प्रोक्लेमेशन पब्लिश के दौरान जो 30 दिन का टाइम है, ये 30 दिन में ये पर्सन जो उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो बेच देगा, किसी को डिस्पोज कर देगा या लोकल जुरिस्डिक्शन के कोर्ट से वो रिमूव करेगा, तो उस सिचुएशन में कोर्ट को अगर ऐसा लगता है तो कोर्ट प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट भी कर सकता है प्रॉपर्टी का साथ में साइमल्टेनियसली. वेट करने की जरूरत नहीं है. अटैचमेंट कैन बी मेड बाय द मैजिस्ट्रेट विद इन डिस्ट्रिक्ट, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, district magistrate endorsement in whose district such property is situated. So if the property of the accused is within the jurisdiction of within the district in which the court is there, so court can attach the property, magistrate can attach the property. But suppose if the property of accused is outside the district, then under such a circumstances endorsement of the district magistrate in whose jurisdiction the property is to be attached is essential. तो अगर मैजिस्ट्रेट के डिस्ट्रिक्ट में ही है तो डायरेक्टली अटैचमेंट हो सकता है. मैजिस्ट्रेट के डिस्ट्रिक्ट से बाहर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में अटैचमेंट करना है तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का एंडोर्समेंट लगेगा, उसके बाद अटैचमेंट कर सकता है. देखिए अब क्या है, सेक्शन 85 का सब क्लॉज 3 है, इफ द प्रॉपर्टी इज मूवेबल द अटैचमेंट. अगर मूवेबल प्रॉपर्टी करना है, अटैच करना है तो क्या होगा, बाय सीजर, उसको सीज करेंगे, मतलब अपने पोजीशन में लेंगे. दूसरा बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, उस मूवेबल प्रॉपर्टी पे रिसीवर अपॉइंट करके उसको अटैच किया जा सकता है. एंड द थर्ड वन इज बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. तो अगर फॉर एग्जांपल दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विद द प्रॉपर्टी ऑफ द अक्यूज्ड इज इन द पोजीशन ऑफ सम अदर पर्सन,
हु इज द इंटरेस्टेड पर्सन। अगर फॉर एग्जांपल कि मूवेबल प्रॉपर्टी तो अक्यूज्ड की है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरे पोजीशन में, मैंने वो रेंट पे ली रखी है फॉर एग्जांपल, तो उस सिचुएशन में अगर वो प्रॉपर्टी सीज की जाएंगी तो मेरा इंटरेस्ट अफेक्ट होगा। मैं तो इंटरेस्टेड पार्टी हूं क्योंकि मैंने रेंट पे लिया हूं, तो उस सिचुएशन में मेरा इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकता है। तो कोर्ट वो प्रॉपर्टी को सीज नहीं करेगा, बल्कि मुझे ऑर्डर करेगा और मुझे प्रोहिबिट करेगा, मुझे मनाही हुक्म देगा कि तुमने ये प्रॉपर्टी उस अक्यूज्ड को डिलीवर नहीं करना है। तो इन दिस वे दैट प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड बाय ऑल और एनी ऑफ द टू सच मेथड एज द कोर्ट थिंक्स फिट। ये सारे मेथड से ही मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच होगी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करना है, इफ द प्रॉपर्टी इज इमूवेबल द अटैचमेंट विल बी बाय टेकिंग पोजीशन, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज नहीं किया जा सकता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड बाय टेकिंग पोजीशन। कोर्ट क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसका पोजीशन लेगा। पोजीशन इन द सेंस हम देखते हैं ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको सील किया जाता है, लॉक किया जाता है, तो ये बाय टेकिंग अ पोजीशन। दूसरा बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, यहां पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जब कोर्ट अटैच करेगा तो रिसीवर अपॉइंट करेगा। एंड द थर्ड वन इज बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट और डिलीवरी प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को प्रॉपर्टी डिलीवर, यहां पर भी सेम सिचुएशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है और मैंने वो लीज पे ली रखी है, तो उस सिचुएशन में अगर कोर्ट उसका पोजीशन लेगा तो मेरा इंटरेस्ट अफेक्ट होगा। तो उस सिचुएशन में मुझे ऑर्डर देगा कोर्ट कि ना तो उसको रेंट तुमने पे करना है और ना तो प्रॉपर्टी डिलीवर करना है। लाइक दैट, इन दिस वे इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी अटैच बाय ऑल और एनी ऑफ द टू ऑफ सच मेथड एज द कोर्ट थिंक्स फिट। ये पूरे मेथड से भी अटैच कर सकता है या इसमें से कोई दो मेथड से भी, लाइक दैट। सब क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 85 डील्स विद इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच कंसिस्ट ऑफ लाइफ स्टॉक और इज ऑफ अ पेरिशेबल नेचर ऑर्डर इमीडिएट सेल देयर ऑफ। जो प्रॉपर्टी अटैच की गई, अगर वो लाइफ स्टॉक है, कोई एनिमल्स वगैरह है या कोई पेरिशेबल नेचर का गुड्स है जो खराब हो सकता है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि उसको इमीडिएटली सेल करो, क्योंकि रखेंगे तो खराब हो सकता है। तो इस सिचुएशन में इमीडिएट सेल का ऑर्डर पास कर सकता है। सब क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 85 डील्स विद द पावर्स, duties and liabilities of a receiver appointed under this section shall be the same as those of receiver appointed under the CPC 1908। तो जो CPC में रिसीवर की लाइबिलिटीज एंड पावर्स रहते हैं, सेम लाइबिलिटीज एंड पावर्स यहां पर भी होंगे। अब देखिए सेक्शन 86 डील्स विद आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोक्लेम्ड पर्सन। प्रोक्लेम्ड पर्सन के प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन और अटैचमेंट वाला प्रोसेस सेक्शन 86 में बताया हुआ है। सेक्शन 86 क्या कहता है, देखिए, द कोर्ट में ऑन द रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग assistance for a court or any authority in contracting state for identification, attachment and forfeiture of property belonging to a proclaimed person in accordance with the procedure provided in chapter 8। अब यहां पर क्या होगा, कोर्ट में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, के पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट आएगी कोर्ट को, और कोर्ट उस सिचुएशन में, क्योंकि अटैचमेंट तो पुलिस ऑफिसर ने करना है प्रॉपर्टी का, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी अटैच करना है, कम से कम ये आइडेंटिफिकेशन हमको कर दो। तो उस सिचुएशन में जहां पर भी जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, कोर्ट उनको ऑर्डर करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ओनली द प्रॉपर्टी विल बी अटैच, वो प्रॉपर्टी अटैच होगी। सेक्शन 87 डील्स विद क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। अब फॉर एग्जांपल कोर्ट ने अटैच कर दिया, और इफ समवन हैज इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर अटैच्ड प्रॉपर्टी, देन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्शन। सेक्शन 87 डील्स विद दैट। सो सपोज if the court attached the property of accused person, but I am having an interest in that property and that my interest is not liable to be attached। अगर कोर्ट ने अटैच किया और उस प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है और मेरा इंटरेस्ट अटैच नहीं होना चाहिए, लाइबल नहीं अटैचमेंट के लिए, तो उस सिचुएशन में मुझे ये राइट है कि आई कैन टेक एन ऑब्जेक्शन एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 87 विद इन 6 मंथ फ्रॉम अटैचमेंट। मेरा इंटरेस्ट है अटैच्ड प्रॉपर्टी में, तो मैं 6 महीने के अंदर ऑब्जेक्शन ले सकता हूं। क्लेमेंट हैज एन इंटरेस्ट एंड सच इंटरेस्ट इज नॉट लायबल टू बी अटैच्ड। मैं क्या बोलूंगा कि सेक्शन 85 में मेरा इंटरेस्ट अटैचमेंट नहीं, क्योंकि मैंने तो ऑफेंस नहीं किया, तो मेरा इंटरेस्ट अटैच नहीं होना चाहिए, ये मैं ऑब्जेक्शन ले सकता हूं। अगर डेथ ऑफ क्लेमेंट बी कंटिन्यूड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो क्लेमेंट की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। फॉर एग्जांपल ए ने ऑब्जेक्शन लिया अटैचमेंट पे, और अटैचमेंट पे ऑब्जेक्शन लेने के बाद एक की डेथ हो गई, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव अगर उसका सन है तो वो उस ऑब्जेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड मे विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर इंस्टीट्यूट अ सूट।
मैंने फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्शन लिया, अटैचमेंट हो गया प्रॉपर्टी का अक्यूज के, और मैंने ये कहा कि ये जो प्रॉपर्टी आपने अटैच की है इसमें मेरा भी इंटरेस्ट है और मेरा इंटरेस्ट अटैच नहीं होना चाहिए। विद इन 6 मंथ मैंने ऑब्जेक्शन लिया, लेकिन कोर्ट ने उस ऑब्जेक्शन को डिसअलाउ किया। तो अगर डिसअलाउ करता है कोर्ट, तो उसके अगेंस्ट में मैं क्या कर सकता हूं, 1 साल के अंदर सिविल सूट फाइल कर सकता हूं। ठीक है, जिस दिन डिसअलाउ हुआ वहां से 1 साल के अंदर मैं सिविल सूट फाइल कर सकता हूं। देखिए सेक्शन 88 डील्स विद रिलीज, सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अब अटैच की हुई प्रॉपर्टी को रिलीज कब होगा? इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन प्रेजेंट, सपोज if the court attach the property of accused person and after attachment if the proclaimed person appears before the court and if he justifies his absence then court is having a power to release the attached property। के अटैच करने के बाद अगर अक्यूज कोर्ट में प्रेजेंट हो जाता है और वो जस्टिफाई करता है उसके एब्सेंस को, तो कोर्ट क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगा। नॉट प्रेजेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो प्रेजेंट नहीं रहता है तो प्रॉपर्टी किसके खाते में जाएगी? सरकारी खाते में, स्टेट गवर्नमेंट में। बट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ। लेकिन उसको 6 महीने के पहले तक, 6 महीने तक बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 6 महीने में किसी भी पर्सन का ऑब्जेक्शन आ सकता है। अटैच करने के विद इन 6 मंथ प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती, क्योंकि 6 महीने वेट करना पड़ेगा कि किसी का ऑब्जेक्शन आता है या नहीं आया, क्योंकि वो लिमिटेशन है ऑब्जेक्शन लेने के लिए। इफ विद इन 2 years अपीयर्स वॉलंटरीली, अगर 2 साल के अंदर वो पर्सन वॉलंटरीली अपीयर होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाएगा अगर वो जस्टिफाई करता है तब। ठीक है, सेक्शन 89 अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। देखिए, एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 88 who is aggrieved by an refusal to deliver property or the proceeds of the sale thereof may appeal to the court to which appeals ordinarily lie from the sentences of first mentioned code। देखिए सिंपल सिचुएशन है कि आपने देखा कि अटैचमेंट के बाद अगर 2 साल के अंदर कोई भी अक्यूज कोर्ट में प्रेजेंट रहता है और वो जस्टिफाई करता है तो उस सिचुएशन में उसकी प्रॉपर्टी उसको रिलीज की जाती है। लेकिन अगर कोर्ट रिलीज नहीं करता है, प्रॉपर्टी अगर अटैच किए वाली जैसी की वैसी है तो प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाएगी। अगर प्रॉपर्टी बेच दिया गया है तो जो भी प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आया है वो उसको दे दिया जाएगा। अगर नहीं देता है वो, तो उस सिचुएशन में उसके अगेंस्ट में अपील कर सकता है वो पर्सन, अक्यूज्ड पर्सन। अपील कहां पर होगी? अगर वो कोर्ट उस अक्यूज को सजा सुनाता तो जिस कोर्ट में अपील होती वहीं पर उसकी अपील होगी। किसकी अपील हो रही बात सेक्शन 89 में? कि अगर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बाद 2 साल के अंदर अक्यूज्ड अगर कोर्ट में प्रेजेंट रहता है तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को रिलीज करना चाहिए। अगर कोर्ट रिलीज नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में वो अपील कर सकता है सेक्शन 89 के हिसाब से। अपील कौन से कोर्ट में होगी? जहां पर सेंटेंस के अगेंस्ट में अपील होती है वहीं पर अपील यहां पे होगी। तो ये था अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।